Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ikram Al-Haq, subject specialist, and you are watching my YouTube channel, English with Ikram. Dear students of class 2nd year, after the grand test of unit number 1, today I am going to start unit number 2, lesson number 1, 2.1, and the name of the lesson is I Have a Dream. This is by Martin Luther King. And you know the process that first I will discuss vocabulary and pronunciation, then some very important MCQs. That's the procedure, that's the process for quality preparation of second year English course. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर हम क्या फॉलो करें, what is the schedule? So I have told you, I have replied you so many times that I am also busy in ETA preparation. I upload videos for ETA. ETA test is near, बहुत करीब है ETA का टेस्ट, जो tentative list है that's 20 September. So after just 1 week, I will start making video for second year English course almost daily. But at the moment, I have to do so many other things as well. That's why I upload video after 2 days. Alternate days या 2 days के बाद मेरी वीडियो आती है. You have a lot of time. अगरचे आपके कॉलेजेस 15 सितंबर से खुल रहे हैं तो 15 सितंबर तक में भी आप 2 या 3 यूनिट्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे. 50% सिलेबस हो जाएगा. उसके बाद आप जब आप क्लासेस भी इतनी जल्दी होंगे, जो SOPs गवर्नमेंट ने बताए हैं, तो क्लासेस इतनी जल्दी फंक्शनल नहीं हो सकती, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर 3 शिफ्ट्स में, तो इतना इजी नहीं है. महीना आप और ध्यान में रख लें आफ्टर द ओपनिंग ऑफ कॉलेजेस. तो इंशाल्लाह जब तक रेगुलर क्लासेस होंगी हम अपना कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके होंगे. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 2. ग्रैंड टेस्ट में जिन लोगों ने मैसेज किए से कमेंट में, मोस्टली दे डिड वेल, आपका स्कोर अच्छा रहा, दैट्स वेरी गुड. नाउ with the same process, with the same procedure, I'm going to start unit number 2, lesson number 2.1. It's very tough, very bombastic language has been used by Martin Luther King because this is an African. The language used in this lesson is very much difficult. So first I will discuss vocabulary and pronunciation, then MCQs. And today I will discuss first 2 or 3 paragraphs from start till Solid Rock of Brotherhood, पेज नंबर 42. आज यहाँ तक हम इसको डिस्कस करेंगे. पहले vocabulary देखते हैं, pronunciation, that's very important. Then I will discuss important MCQs. So let's get started. First word, 5 score years. This is a phrase, 5 score years means 20 years. 5 of a set of 20 years. A set of 20 years means 5 score years means 20 years, and 5 score years, it's 100 years. 5 score years mean 100 years. Score is for 20. 5 score years, 100 years, a century you can say. It means a century. 5 score years ago, this is the opening word, opening sentence, 100 साल पहले. The next word is emancipation. Emancipation means liberation, azadi, liberty, independence, nijat. Emancipation, liberation, or you can say liberty or independence, किसी जुल्म, किसी बर्बरियत से, किसी गुलामी से आज़ादी को कहते हैं emancipation. Then proclamation. Proclamation means public announcement. To announce any statement, to announce something publicly, that is proclamation. इमेंसिपेशन और प्रोक्लेमेशन आपको मैं बता चुका हूँ कि इस लेसन में बड़ी बॉस्टिक, बड़ी टफ किस्म की इंग्लिश यूज़ की है. दिस इज़ बाय मार्टिन लूथर किंग, एन अफ्रीकन. देन मोमेंटस. द नेक्स्ट वर्ड इज मोमेंटस. मोमेंटस मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिक, पॉपुलर, मशहूर, तारीखी. बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा मशहूर. मोमेंटस, दैट इज़ अनफॉरगेटेबल. मोमेंटस मीन्स हिस्टोरिक और वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट. आपको मैं पिछले यूनिट में बता चुका हूँ कि द पर्पज़ ऑफ डिस्कसिंग दिस vocabulary इज जस्ट टू मेक यू पीपल कैपेबल ऑफ कॉम्प्रिहेंड द लेसन. जब आपको लेसन समझ आ जाए, बाकी पेपर में आपको ज़रूरी नहीं कि आपको ट्रांसलेशन का कोई क्वेश्चन आएगा. सेकेंड ईयर के पेपर में ट्रांसलेशन का क्वेश्चन नहीं होता. तो आई डिस्कस vocabulary and pronunciation जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, टू एड vocabulary आपकी
जो वोकैबुलरी है उसको इनरिच करने के लिए मैं वोकैबुलरी डिस्कस करता हूँ। आगे आपको मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर भी काम आती है, स्पोकन के लिए, लिखने के लिए, राइटिंग के लिए, और आपको अपना टेक्स्ट समझने के लिए आपको वोकैबुलरी हेल्प करती है। दैट्स व्हाई आई डिस्कस वोकैबुलरी एंड देन प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिक्री। डिक्री मीन्स एन ऑफिशियल ऑर्डर, हुक्म, एन ऑफिशियल ऑर्डर, एन ऑर्डर दैट इज़ इशूड ऑफिशियली। डिक्री आम तौर पे इसको लोग डिग्री पढ़ते हैं, डिग्री जारी हुई है, जो आम उर्दू में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। दिस इज़ नॉट अदालत ने, कोर्ट ने डिग्री जारी की है, तो वो डिग्री नहीं होती, वो डिक्री। डिक्री मीन्स हुक्म, हुक्मनामा, ऑफिशियल ऑर्डर, दैट्स डिक्री। द नेक्स्ट वर्ड्स फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 1, दैट्स बीकन, बीकन लाइट, गाइडिंग लाइट, अ लाइट दैट गाइड्स यू, ऐसी रोशनी जो दूर तक जाती है, आपको गाइड करती है। तो यहाँ इसमें आपने कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखना है, जिस चीज़ को भी वो जिक्र कर रहे हैं, दैट्स द बीकन, आपकी गाइडलाइन, ऐसी रोशनी, ऐसी लाइट जो आपको गाइड करती है। तेज़ लाइट होती है बीकन, जो आपको दूर तक दिखाती है, दूर तक गाइड करती है, दैट्स बीकन। द नेक्स्ट वर्ड इज सीयर, SEAR, नॉट सेयर, इट्स सीयर। सीयर मीन टू ड्राई अप, किसी चीज़ को जला देना, टू बर्न समथिंग, किसी चीज़ को जला के राख कर देना, ड्राइव कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना, झुलसा देना, जला देना। टू बर्न समथिंग, टू ड्राई अप समथिंग, किसी चीज़ को बिल्कुल जला के राख कर देना। देन डे ब्रेक, डे ब्रेक मीन्स स्टार्ट ऑफ द डे, दैट्स अ बिगिनिंग, अ स्टार्ट, किसी चीज़ का स्टार्ट। डे ब्रेक जब सुबह दिन स्टार्ट होता है, शुरू होता है, दैट्स डे ब्रेक। तो हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट द मीनिंग इज द स्टार्ट, द बिगिनिंग, किसी चीज़ का आगाज़। द नेक्स्ट वर्ड इन दिस लेसन दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है, नेग्रो। नेग्रो इज़ अ रेस ऑफ पीपल हैविंग डार्क स्किन, तो ऐसी नस्ल है जिनको हम हबशी कहते हैं, नेग्रो, काले, अफ्रीकन। द लेसन इज़ अबाउट अफ्रीकन, जिन पर काफ़ी ज़माना जुल्म होता रहा। तो ये मार्टिन लूथर किंग बाय निकला कि मेरा ख्वाब, आई हैव अ ड्रीम। लेसन का नाम है आई हैव अ ड्रीम, कि लोग आज़ाद हों, उनको उनकी आज़ादी के जो हकूक़ मिले, बराबर के हकूक़ मिले। इन पे जो गोरे थे, वाइट कलर लोग जो थे, उन पर जुल्म करते थे। तो ये पूरी उनकी तहरीक है, लिब्रेशन की तहरीक है, लिबर्टी की तहरीक है, उसके बारे में उनकी एक स्पीच है। तो आप उसको जब स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स, तो जब आप मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होगी। इस वक्त मेरा फोकस है दैट्स ओनली MCQs। द नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रिपल्ड। क्रिपल्ड मीन डिसेबल, माजूर हो जाना। क्रिपल्ड अ पर्सन हु इज़ डिसेबल, उस पर कोई भी माजूरी है, कोई काम करने की सलाहियत को बंदा नहीं रखता, दैट इज़ क्रिपल्ड, दैट इज़ डिसेबल, डिसेबल टू डू समथिंग। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ manacles. Manacles. Manacles means handcuff. Obstacles. Obstacles, handcuff, hindrances, रुकावट, बेड़ियाँ जिसे हम कहते हैं। तो handcuff हाथों में जो डाल देते हैं, that is handcuff और obstacles, या कोई भी रुकावट। यहाँ इस contextual meaning में रुकावट इसका मतलब है, वैसे manacles कहते हैं handcuff को, हथकड़ियाँ जो लगाई जाती हैं किसी भी मुल्ज़िम को या मजरूम को। नेक्स्ट वर्ड इज़ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स डिवीजन, पार्टीशन, तकसीम हो जाना, सेपरेशन, दूर हो जाना, डिवाइड हो जाना, दैट इज़ सेग्रीगेशन। द नेक्स्ट वर्ड इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स टू सफ़र फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी जुल्म में, किसी तकलीफ़ में लंबे अरसे तक मुब्तला रहना, लंबे अरसे तक किसी तकलीफ़, किसी बर्बरीत का, जुल्म का शिकार रहना, और उससे कमज़ोर हो जाना। यानी बीमारी में भी आप बहुत ज़्यादा किसी में उसमें आप कमज़ोर हो गए, दैट इज़ आल्सो वी यूज़ द वर्ड लैंग्वेज। या किसी जुल्म, किसी मुसीबत, किसी भी आफत में वो लंबे अरसे तक रहना, दैट इज़ लैंग्वेज। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ अपॉलिंग। अपॉलिंग मीन्स टेरिबल, टेरिफिक, ऑफुल, खौफनाक, बहुत सख्त। Then the next word is promissory note. The next word is promissory note. Promissory note is a signed document. ऐसा document जो आप sign करते हैं, in which you say that you keep a promise to pay back the money.
ऐसा साइन डॉक्यूमेंट जिसमें ये तहरीर की जाती है कि इतने टाइम में आपको जो आपने कर्ज लिए, जो पैसे लिए, वो वापस की जाएंगे. साइन डॉक्यूमेंट टू पे द मनी बैक, दैट इज़ promissory note. The next one is unalienable. Unalienable that cannot be transferred. जो चीज़ आगे ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, पक्का ठक्का, अनअलाइनेबल, जिसको आप जुदा नहीं कर सकते, आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. That cannot be transferred, that is not transferable. The next word is insafar. Pronunciation of this word is insafar. Long vowel at the end of the word. Insafar. Insafar means to such an extent. Is had tak. Insafar is had tak, to such an extent. Insafar. Right? The next word is bankrupt. To normally hear this word very often, बहुत आम इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़ bankrupt. bankrupt हो गए, मुल्क bankrupt हो गए, दिवालिया होना उर्दू में कहते हैं, without enough money to pay. आपके पास तब पे करने के लिए, खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं जाते, दिवाली हो जाने निकल जाना, बैंक जो है वो दिवाली हो गया, इनके पास पैसे नहीं है, फ़लाँ इदारा bankrupt हो गया, इसके पास पैसे नहीं है चलाने के लिए, to run that particular department. That is bankrupt. दिवाली हो जाना, आपके पास पैसे ख़त्म हो जाना. Then vaults कहते हैं storage, गोदाम, stores. Then hallowed. Hallowed means sacred, respected, मुक़द्दस, holy. Hallowed, HALLOWED, it's hallowed. Hallowed means hallowed. Hallowed means respected, holy, मुक़द्दस. The next important word is cool off. It's time to cool off. Cool off means the time to take rest after a very tough job. कोई बहुत tough job करने के बाद थोड़ी देर आराम करना, थोड़ी देर relax feel करना. The time to get relaxed after a very tough job. It's time to cool off. Cool off means to take rest after a very tough job, hectic job. The next word is tranquilizing. Tranquilizing means calmness, sukoon, khamoshi, peace, aman. Tranquilizing effect, soothing effect, calmness, khamoshi, sukoon, aman. Then the next word is desolate. Desolate means viran, lonely. Tanha, viran, lonely, desolate, viran. And the last word from these two or three paragraphs आपको मैं बताया है, पेज नंबर 42, रॉक ऑफ ब्रदरहुड, सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड. यहाँ तक जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे. द लास्ट वर्ड इज क्विकसैंड. क्विकसैंड मीन्स सॉफ्ट सैंड, ऐसी रेत जो पानी के साथ साथ बहती रहती है, सॉफ्ट सैंड. उर्दू में बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ यूज़ होता है इसके, रेगे रवां, ऐसी रेत जो पानी के साथ साथ, पानी के भाव के साथ साथ बहती रहती है, सॉफ्ट सैंड. So these are a few words that I have discussed from these 2 or 3 paragraphs. That's very important for your vocabulary, for the comprehension of the text. Now the same thing that you are supposed to do, you have to pause the video over here, you will read the whole text, skim the text for important MCQs. जहाँ आपको important MCQs लगे, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कौन से MCQs इंपॉर्टेंट होते हैं, डैग फिगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अंडरलाइन कर दें. फिर जब मैं डिस्कस करूँगा उनके बाद दोबारा स्कैनिंग करेंगे, दोबारा आप देखेंगे उन MCQs को, फिर आप पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन के लिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. MCQs. MCQ नंबर 1, यू हैव स्किम द टेस्ट. आपने टेक्स्ट को स्किम कर लिया. वट एवर यू हैव अंडरलाइन, दैट्स ऑन द बेस्ट ऑफ दैट स्किमिंग. आप उसकी स्किमिंग की बेस पे you will answer, you will choose the correct option yourself. Then after my discussion, you will see, you will assess yourself that how many options are correct. From these 2 paragraphs, I will discuss just 5 MCQs, very important MCQs from examination point of view. So let's get started. Number 1, but 100 years later, we must face the fact that Desh is still not free. A very important word I have discussed in vocabulary. So here the correct option is, I told you so many times earlier that while my discussion you should write the right option down in the comment box. आपने comment box में खुद लिख लिया करें, just for assessment. बाद में दोबारा आपने स्कैनिंग करनी है, आपने कम्प्लीटली अपने उस इन टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए दोबारा पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ वोकैबुलरी और कंटेक्चुअल मीनिंग. आप उनको स्टडी करेंगे उसके बाद पहले 2-3 पैराग्राफ्स को, फिर दोबारा आप इन स्पेसिफिकली इन
MCQs को अंडरलाइन करेंगे और फिर आप अपनी नोट बुक में लिख लें, क्योंकि आखिर में फिर आपका ग्रैंड टेस्ट भी होता है। सो इस वक्त आप अपने आप को चेक करें, आपने जो हल्का सा पढ़ा है, जो स्किमिंग की है, उसकी बेसिस पे आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल क्या है। तो हियर द राइट ऑप्शन इज, बट 100 years later we must face the fact that the Negro is still not free. The Negro, अब शी जिसे हम कहते हैं, a person having dark skin. Number 2, it came as joyous day to end the long night of captivity. It came as a joyous what? Again, this is the word that I have discussed in vocabulary. So this is daybreak. It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity. So here the right option is daybreak. Number 3, so we have come here today to dramatize the day's condition. What do you think? What should be the right option over here? So we have come here today to dramatize the appalling condition. Again, this is a word that I have discussed in vocabulary. जो वर्ड में vocabulary में डिस्कस करता हूँ उनको भी अंडरलाइन कर लिया करें, just for vocabulary. Vocabulary is also very important for spoken language, for different types of tests. ईटा की आफ्टर FSC जब आप ईटा में जाते हैं तो ईटा में vocabulary से भी आपके MCQs आते हैं, तो ये आपकी vocabulary इंटरेस्ट हो रही है, तो इसके रिटन में, स्पोकन में और मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट में भी आपको फ़ायदा होता है। तो दो vocabulary इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अंडरलाइन कर ले करें, और यही vocabulary वाले वर्ड्स बाज़ दफ़ा आपके MCQs में भी आपको हेल्प करते हैं यहाँ। Number 4, 100 years later the Negro is still dash in the American society. What do you think? Again, this is the word that I have discussed in vocabulary. 100 years later, the Negro is still languished. ये वर्ड में डिस्कस कर चुका हूँ vocabulary में. What is the meaning? Contextual meaning here in this context. The meaning of the word languish. Languish means to face any misery for a long time. किसी तकलीफ, किसी मुसीबत में ज़्यादा टाइम तक, इतना ज़्यादा रहना कि बंदा बिल्कुल कमज़ोर हो जाए. That is to become weakened, being for a long time in any misery or any suffering. And then the last MCQ is, now is the time to make the promises of, to make real the promises of, what do you think? What is the right option? That is democracy. Democracy. The right option over here is democracy. Now is the time to make real the promises of democracy. So these were 5 very important MCQs from these 2 or 3 paragraphs, and you have to, what you are supposed to do now, you will read the whole text for these 5 very important MCQs. Write down in your notebook and then practice. And for comprehension, अपने इस टेक्स्ट को comprehend करने के लिए आप contextual meaning की मदद से दोबारा इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे और आप इन MCQs को फिर आप underline करेंगे. So that's all about the first 3 paragraphs. In next video, I will try to end this lesson, though it's very long and very tough, having very bombastic language, बहुत मुश्किल words use हुए हैं, कि मैं कोशिश करूँगा इसको end करने की, ना हुए तो then again this lesson will be in 3 parts. So keep watching my videos for quality and conceptual preparation of your English second year English course. That's all for today. Thank you very much. Allah Hafiz.